Yeah. Yeah, Almas, please go ahead. Yes, I did it actually for my sister-in-law because we always keep arguing mainly um, small things. Um, there is wastage of food or if there is wastage of electricity, then I keep telling her, and I like lot of complaints. I keep complaining about her. So, like, there is no peace in the house early in the morning because of that. Then I realized that she's doing a lot of things, uh, so for which I have to be grateful. I started recollecting actually yesterday only while we were reading the chapter. Then I started recollecting what were the things she does, like filling water or cooking sometimes if I'm not in place. Then she, like, if she's there, she takes care of the family behind me when I'm at work. So that is what I started writing 10 things, good things about her, and started being grateful. So, I started doing magical dust also. So that really is, working so much that now I stopped cribbing and complaining. That Yeah. is the change that I've seen in myself. And when you wrote those 10 things about her, when you started and when you finished, what was the difference in your feelings and emotions? Yeah, it changed my perspective towards her, looking at her, and you know, uh, as I told, I started doing magic dust. I kept her pic on my mobile, and I started doing magic dust. And yesterday, while I was writing 10 good things, then I was grateful that she's doing at least so many things in the house. If she wouldn't have been there in that case, everything I had to do. So I would have been worried behind while I was at work. So that was my feelings. Uh, so much of things that we do it together at home also. Yeah. So So, when we were talking about burning coal, like it was one of your burning coal relationship, right? yeah, जो yeah, आपको तकलीफ yes, देता है, जो आपको परेशान करता है. So, my question is, has your feeling towards that person shifted? yes. Now it has shifted. Yeah, Now it has shifted. yeah. And if the little bit of irritant is still there, then I would suggest that you keep doing it for another couple of days. Do it for 3 days. And if it is still there, then do it Three, for 7 days. Do concentrated yes, gratitude for that particular relationship. Yeah. yes, So that's yes. what I wanted to say. So others who have done it, if they want to share, Varun, would you like to share? Have you done the assignment? Yes, I've done the assignment. I also give the thumb mark on the Okay, group. okay, So, I had a incomplete relationship with my Guruji in Haridwar. okay. तो मैंने उनको बोला था कि मैं उनसे रेगुलर मिलने आता रहूंगा, बट मैं ना 6-6 महीने जा नहीं पाता हूँ. जान नहीं पाते हो या जाते नहीं हो? जाता नहीं हूँ मैं. हाँ, तो मैं उसको ना लास्ट प्रायोरिटी पे रखता हूँ, या और कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड हो जाता हूँ, फिर मैं जाता नहीं. हम्म, तो कहीं ना कहीं वहां पे ये इंप्रेशन है कि वरुण बोल तो देता है पर आता नहीं है. हाँ. तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने उनको, मुझे लगता है कि रिलेशनशिप वैसा नहीं जैसे हो सकता है. ओके, सो मेरा क्वेश्चन ये है, हमने ऐसा एक रिलेशनशिप लेना था जहां आपके मन में उनके लिए कुछ ऐसा है जो आपको परेशान करता है. यस, और मेरे मन में ये है कि ना उनके ना एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है. ओके, ही एक्सपेक्ट्स अ लॉट फ्रॉम मी, और मेरे को उन एक्सपेक्टेशन को मीट करना बर्डन लगता है, तो मैं उनसे ओके, भागता हूँ. ओके, गॉट दैट. या तो आपने फिर उनके जो कितने ग्रेटिट्यूड लिखे उनके लिए? 10.
Okay, and what was the shift? Did you feel any change? Did you feel any shift? उनके प्रति जो मेरा लव था वो वापस आ गया। Okay, and what are you going to do now? अब मैं उनसे मिलने जाऊंगा इस वक्त पक्का। Great. So great. Thank you so much, Almas and Varun, for sharing. And let's start with today's chapter. It's a very important chapter, और सारे chapters important हैं, but इस बुक में कुछ ऐसा है ही नहीं जो important ना हो, but कुछ कुछ होता है ना, कुछ चीजें किसी के लिए important होती हैं, कुछ किसी और के लिए important होती हैं। तो let's see. मैं भी शेयर करना चाहती थी। हाँ, please go ahead. मैं ना जब यहाँ आई थी तो एक लेडी है प्रोफेसर, मेरी उससे बहुत अच्छी बन गई। रेगुलरली हम लोग मिलते थे, घूमते थे, खूब मस्ती करते थे। तो वंस शी इंसिस्टेड मी कि तुम मेरे साथ चलो, आज मेरी बेटी का बर्थडे हमने सेलिब्रेट करना है। मैंने मना किया, मैं क्या यार तुम लोग सब जाओ, फैमिली मेंबर बच्चों को ले जाओ, मैंने क्या करना है। एक्चुअली आई वाज नॉट रेडी, मैं तो ऐसे ही उसे मिलने चली गई थी उस दिन। बट उन्होंने जिद की कि तुम जाओ, तैयार होकर के आओ, तुम चलोगी साथ में, और 10 मिनट के अंदर तैयार होके आओ। मैं फुल स्पीड से भागी आई, एकदम से आई गॉट रेडी, एकदम से अपना मेकअप वगैरह भी किया, उसके लिए गिफ्ट भी लिया। और जब मैं उसके घर पहुंची, जाके मैं बेल बजा रही हूँ, दरवाजा नहीं खोल रहा कोई। आई आस्क्ड, यार क्या हुआ, दरवाजा तो खोलो, मैं बाहर गर्मी में थक गई। तो शी सेड कि यार बच्चों ने जल्दी मचा ली थी तो हम लोग निकल आए। मैं कहा तुम मुझे फोन तो कर देती तो मैं ना तैयार होती अब। पर मेरे को ना इतना गंदा फील हुआ था उस दिन, तो उसके बाद ना मैंने उससे बात करनी एक तरह से बंद कर दी। दिस इज नॉट फेयर कि तुम किसी, मतलब इस उम्र में मैं इतना तेज से भाग के सब कुछ किया और तुम छोड़ के चले गए। अच्छा, जब भी उसके घर के पास से निकलती थी अंदर से टीस सी उठती थी कि यार ये इतना अच्छा रिलेशन खराब हो गया। बुरा भी फील हुआ था, और वो भी गिल्ट के मारे बुलाती नहीं थी। कल सबसे पहले उसको मैसेज दिया कि आई मिस दोस टाइम्स जब हमने इतनी मस्ती की है। एंड उसका भी मैसेज आया, कहती यार मैं भी फील करती हूँ। फिर फोन पे हमने बात की, दोनों रोई हम। और आज हम लोग मिलेंगे। तो दिस इज व्हाट इट हैपेंड। हाँ, तो वेरी गुड, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आप ना उनके लिए 10 ग्रेटिट्यूड भी लिखला, अगर नहीं लिखे। नहीं लिखा था, कल मैंने उसको पहले मैसेज दिया, फिर फोन पे बात करी हम, और दोनों रोए भी हम फोन पे। चलो, वेरी गुड। इतनी अच्छी दिवाली होगी ना आपकी। या Okay, great. So who's going to read today's chapter? Varun? Yes, I can. Yeah, please go ahead. Others, please be on mute. Yeah. Magic and miracles in health. Day 16. Day 16. Magic and miracles in health. Stop cutting corners, Varun. Okay. Yeah. Miracles are not contrary to nature, but only contrary to what we know about nature. Saint Augustine, 354 to 430, theologian and Catholic bishop. Okay. तो ये जो मिराकल्स है ना, ये तो प्रकृति में हर तरफ फैले हुए हैं, हर तरफ व्याप्त हैं। हमें नहीं दिखते हैं क्योंकि हमें नहीं पता है उनके बारे में। हमें उतना ही पता है जो जितना पता है। अब जब हम आगे आगे पढ़ेंगे मैजिक क्यूज के बारे में और तो आपको एहसास होगा कि मैजिक तो हर जगह है। अब जैसे नेचर है, अब जब तक मैंने बैच फ्लावर्स के बारे में नहीं पढ़ा था, मुझे नहीं पता था कि प्रकृति ने हर इमोशन को हील करने के लिए एक फूल दिया है, और वो फूल हमारे इमोशंस को बैलेंस कर देता है। उसका फूल का एक्सट्रैक्ट अगर आप कंज्यूम कर लेते हो या खा लेते हो या पी लेते हो, या आप उसको अपने बॉडी पे इस्तेमाल कर लेते हो, आपके जितने भी इमोशंस हैं, हमारे जो सेवन सेवन मेजर इमोशंस होते हैं, और मतलब उनको सब इमोशंस कर करके वो 39 होते हैं। और हमारी जिंदगी में, हमारे बॉडी में जितनी भी तकलीफें आती हैं,
वो हमारे इमोशंस की वजह से, फीलिंग्स एंड इमोशंस की वजह से आती हैं, क्योंकि वो इमोशन क्या करता है, वो इमोशन कोई ना कोई हार्मोन ट्रिगर करता है हमारी बॉडी में। अब वो हार्मोन क्या होता है, केमिकल होता है, और हमारी बॉडी में वो केमिकल इम्बैलेंस होता है तो हम बीमार हो जाते हैं। तो हम ऊपर से दवाइयाँ खा के उनके सिम्पटम्स पे कुछ ना कुछ करके उसको दबाने की कोशिश करते रहते हैं। बट अगर हम वो रूट कॉज़ जो है इमोशन, उसके ऊपर ही काम करें, तो वो वहीं से खत्म हो जाती है चीज़। ये चीज़ मुझे पता ही नहीं थी, बट इट वाज़ देयर इन द नेचर। सो कह रहे हैं कि मिरेकल्स आर नॉट कॉन्ट्ररी टू द नेचर। वो नेचर को नहीं पता, नेचर से अलग नहीं है, नेचर में ऑलरेडी है, पर हमें नहीं मालूम है क्योंकि हमें उतना ही पता है कि हमें नॉलेज है। पर मैजिक और मिरेकल हर तरफ है। या प्लीज कंटिन्यू। We should feel healthy, energized, and full of happiness most of the time because that is how it feels to have our birthright of full health. पॉज। The reality, हम जब पैदा हुए हैं तब से भगवान ने हमें गिफ्ट ऑफ हेल्थ दिया है, या एंड वी आर सपोज टू हैव हेल्दी एनर्जाइज्ड बॉडी फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड कहते हैं ना, एक्शन से भरी हुई, मतलब एक्टिविटी से भरी हुई इतनी एनर्जी है उसने हमें दी हुई है। बट ऐसा हम फील क्यों नहीं करते हैं? हाँ जी, क्योंकि ये हमारा बर्थ राइट है। हमारी बॉडी हमेशा अच्छा रहना चाहती है, हमेशा ठीक रहना चाहती है, हमेशा एनर्जाइज रहना चाहती है, क्योंकि वो हमारा बर्थ राइट है। तो फिर ऐसा होता क्यों नहीं है हमारे साथ? हमें क्यों तकलीफें होती हैं? या लेट्स रीड। the reality, however, is that a lot of people don't feel this way very often. If ever, many people are dealing with illness, problems with the functioning of their body, or suffering from bouts of depression and other mental health problems, which are all states of less than full health. हाँ, तो आज अगर आप अपनी जिंदगी में आसपास देखो, वी डोंट सी एनीबॉडी फीलिंग लाइक हेल्दी एनर्जाइज्ड ऑल द टाइम, है ना? कभी कभी बीच बीच में लगता है कि हाँ बहुत एनर्जी लग रही है, बट आफ्टर आफ्टर फ्यू आवर्स वी फील डिप्लीटेड, एनर्जी खत्म हो गई, है ना? या फिर कोई आपको बहुत उदास दिखता है, या आपको कोई स्ट्रेस दिखता है, कोई आपको बड़ा एंग्शियस दिखता है, आप अपने आप नजर घुमा के देखो, कोई ऐसा एक भी इंसान दिखता है आपको जो आपको लगता है कि इज एंजॉयिंग गुड हेल्थ एंड फीलिंग एनर्जेटिक एंड हैप्पी? घुमा के देखो ना नजर अपनी, अपने से शुरू करना। नहीं है ना? मुझे तो कोई Very नजर नहीं true. आया। मुझे तो हर एक बंदा किसी ना किसी चीज से जूझता हुआ नजर आ रहा है। या Yes. या बिकॉज वी डोंट हैव दैट स्टेट ऑफ फुल हेल्थ। एंड हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं होता है, मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ भी होता है। या प्लीज रीड। Gratitude is one of the fastest ways I know to magically begin experiencing the full state of health you are meant to have in your body and mind. All the miracles of healing we see happen are simply the result of full health being restored instantly in the human body, where before there was less than full and perfect health. If you don't think gratitude creates miracles in your health and body, then read some of the thousands of miracle stories on the Secret website. It is www.thesecret.tv/stories. ओके, अब हमको लगता है यार डॉक्टरों के पास जाके इसका इलाज होता है, और हम एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास भर भर के पैसे देते हैं, दुनिया भर के हम टेस्ट कराते हैं, दुनिया भर के हम सीटी स्कैन और एमआरआई और दुनिया भर की चीजें कराते हैं कि शायद वहां कोई इसका रास्ता निकल आएगा। हमें लगता है उनके पास इसका क्योर है, उनके पास इसका इलाज है, और है भी, कुछ हद तक है, बिकॉज दैट इज व्हाई डॉक्टर्स आर देयर, रिसर्चेस आर बीइंग डन। बट एक इसका बहुत आसान और ऐसा इलाज है जो आपके हाथ में है, और वो है शुक्राने देना, वो है ग्रैटिट्यूड देना। अगर आप अपनी हेल्थ को परफेक्ट करना चाहते हो, अपनी हेल्थ को ठीक करना चाहते हो, कोई भी तकलीफ है आपको, आपके सर में दर्द, माइग्रेन रहता है आपको, या आपके पैरों में दर्द है, या आपके घुटनों में दर्द है, या आपके स्टमक में स्टमक अपसेट है आपका, या आपको फीवर भी है,
तो the only thing you need to do is start paying gratitude to your body. हमने जिंदगी में कभी भी अपनी बॉडी को ग्रेटिट्यूड दिया ही नहीं। रिमेम्बर हमने जब पिछला वाला हेल्थ वाला किया था, मतलब जब हमने वो वाले पोर्शंस पढ़े थे ना, कि हमने अपने कभी हाथों को, पैरों को, अपनी सेंसेस को, ऑर्गन्स को, हमने कभी थैंक यू बोला ही नहीं है, बिकॉज वी जस्ट टेकन देम फॉर ग्रांटेड। ये मशीनरी पता नहीं कैसे बनी हुई है, हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी है और कैसे अपने आप ऑटोमेटिकली काम करती है विदाउट यू नो इतना सा भी हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन नहीं होता उसका। सब कुछ ऑटोमेटेड है, अपने आप काम कर रहा है और परफेक्ट कंडीशन में काम कर रहा है, पर हमने कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जब कहीं ब्रेक डाउन होता है तब हमें लगता है यार पेट में बहुत दर्द हो रही है, उससे पहले लक्कड़ हजम, पत्थर हजम जब तक चल रहा है खाए जा रहे हैं और कभी ध्यान ही नहीं दिया। सो एक हमारे पास जादू है जिसको कहते हैं शुक्राना, जिससे आप अपने किसी भी हेल्थ कंडीशन को रिस्टोर कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट फीलिंग फुल ऑफ हेल्थ एंड एनर्जी। वो आपकी कहते हैं ना, फुल हेल्थ रिस्टोर कर सकता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप हजारों ऐसी कहानियां इस वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो। एंड इवन बेटर, सुपर सीक्रेट करके एक व्हाट्सएप, एक क्या कहते हैं, ऐप है। आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करेंगे, उसमें आपको एक पोर्शन है अबाउट स्टोरीज। आप वहां पे बहुत सारी स्टोरीज पढ़ सकते हैं। आपको जो तकलीफ है ना, आप वो तकलीफ लिखोगे, उस तकलीफ से रिलेटेड कितनी कहानियां मिल जाएंगी आपको। एंड उसमें आप अपनी कहानियां भी अपलोड कर सकते हो। अगर आपने कुछ क्रिएट किया अपनी हेल्थ में, तो आप अपनी हेल्थ के बारे में, मनी के बारे में, कुछ भी एरिया जहां भी आपने मैजिक क्रिएट किया है, आप भी अपनी स्टोरीज को अपलोड कर सकते हैं। या हाँ जी, पढ़े। Gratitude's magical power increases the natural flow of health to the mind and body and can assist the body in healing more quickly, as countless studies have shown. The magical power of gratitude also works hand in hand with good bodily care, nutrition, and any medical assistance you might have chosen to follow. ओके, व्हाट इट सेज इज कि मैजिकल पावर है ना जो ग्रेटिट्यूड की, इट इंक्रीजेस द नेचुरल फ्लो ऑफ हेल्थ टू द माइंड एंड बॉडी एंड कैन असिस्ट द बॉडी इन healing more quickly. अब ये अगर आपने ये बुक पढ़ी है लुई हे की, यू कैन हील योर बॉडी और यू कैन हील योर लाइफ, उसने बड़ी क्लियरली लिखा है उसमें कि हमारे थॉट्स जो है वो हमारी बॉडी की कंडीशन को क्रिएट करते हैं। या और हम भी वही बात कर रहे हैं, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कह रहा है कि जो आप सोचते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ। तो अगर आप हर टाइम पे सिर्फ अपने दुख तकलीफ के बारे में ही बात कर रहे हो, तो आप उसी को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो लुई हे ने अपनी किताब में हर बीमारी के पीछे थॉट क्या होता है हमारा, जो उस बीमारी को क्रिएट कर रहा है हमारी बॉडी में, उसके बारे में लिखा है। और उसको रिप्लेस करने के लिए नया थॉट क्या होना चाहिए वो भी लिखा है, विच यू कैन यूज एट एज अफर्मेशन। देखो, अगर आपको कोई तकलीफ है, आप सबको बता रहे हो यार आज तो ना बड़ा ही सिर दुख रहा है, आज तो मेरे पेट में बहुत ही गड़बड़ हो रही है, द मोर यू आर टॉकिंग अबाउट इट, इट्स लाइक यू आर अफर्मिंग इट। अफर्मेशन क्या होता है? एक चीज को बार बार बोलना। तो सिमिलरली अगर ये आप बीमारी के बारे में बात भी कर रहे हो, तो आप अफर्मेशन ही कर रहे हो। जितना ज्यादा बोलोगे उसके बारे में, जितना उसको पावर देते जाओगे, उतना वो आपकी जिंदगी में और आता जाएगा। इट्स अ सिंपल लॉ ना ये तो, अरे ये तो प्रकृति का नियम है, तो यूनिवर्सल लॉ है, लॉ विच सेज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप उसको एनर्जी दिए जा रहे हो। अगर किसी से बात करनी है तो सिर्फ उस इंसान से बात करो जो उसका निदान कर सकता है, जो कि एक डॉक्टर है। आप अपने डॉक्टर्स के कुछ जाके बताते हो कि डॉक्टर साहब मुझे यहाँ पे ये तकलीफ हो रही है, समझ में आता है। सारी दुनिया में डंडोरा क्यों पीट रहे हो? जो मिल रहा है उसको बोलो यार आज तो उठा ही नहीं जा रहा, आज तो बड़ा ही सिर दुख रहा है, आज तो बड़ा ही सिर दुख रहा है, आज तो मैंने सुबह से नहीं उठा, मेरे पेट में इतनी दर्द हो रही है। सो व्हाई आर यू, उसको मतलब बार बार क्यों बखान कर रहे हो उसका? अपना नुकसान खुद कर रहे हो।
Similarly, when you start saying gratitude for that part of your body, आप उस पावर को इंक्रीज कर रहे हो जो आपको हील करेगी. इसका इस्तेमाल आपको, अगर आपको कुछ तकलीफ है, आप उसके लिए दवाई ले रहे हो, तो आप दवाई खाते टाइम भी ग्रैटिट्यूड दे के खा सकते हो. आप जब अपनी कोई फिजियोथेरेपी के लिए जा रहे हो या अपने किसी टेस्ट के लिए जा रहे हो, तो आप उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड दे के उस चीज के लिए जा सकते हो, ताकि वो आपके लिए पहले से ही पॉजिटिव में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए. तो ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम पॉजिटिविटी बढ़ा रहे हैं ना. तो इफ यू आर हैविंग मेडिसिन एंड यू हैविंग मेडिसिन, खाने से पहले उसको धन्यवाद दे रहे हो कि तू मेरे शरीर में जाके मुझे हील करने वाली है. थैंक यू सो मच मेरे शरीर को वापस रिस्टोर करने के लिए, हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. उसके बाद आप दवाई खा रहे हो, उसका असर ही अलग होगा. तो आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हो उसको बंद मत कर देना, उसके साथ एक और इंग्रेडिएंट ऐड कर देना जिसको बोलते हैं ग्रैटिट्यूड. जब भी दवाई खाओ ग्रैटिट्यूड ऐड कर दो उसमें, और आप देखो कि क्या मैजिक होगा. हाँ जी. When there is some kind of sickness or condition in your body, it is understandable that you may have negative feelings about it, like worry, frustration, or fear. But having negative feelings about sickness does not restore health. In fact, it has the opposite effect. It reduces health even more. To increase your health, you need to replace the negative feelings with good feelings, and gratitude is the easiest way to do it. ओके पॉज. जब कोई तकलीफ होती है ना, आजकल क्या हो गया है, लोग क्या करते हैं, सर में भी दर्द होता है ना, फटाफट नेट पे जाते हैं, गूगल सर्च मारते हैं, अगर सर में दर्द हो रहा हो तो क्या क्या हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, और उसका वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है. अरे व्हाई आर यू डूइंग ऑल दिस, यू आर अट्रैक्टिंग ऑल दैट इनटू योर लाइफ. आप परेशान हो रहे हो, वरी हो रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो उस चीज के बारे में, तो क्या कर रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग इट ना. आप और उसको इंक्रीज कर रहे हो और उसको अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में. सो स्टॉप डूइंग ऑल दैट. कि अगर जरा सी, अच्छा आजकल तो और मजे की बात, लोग जो दवाई डॉक्टर लिख के देता है उसके भी सॉल्ट चेक करते हैं कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं. अरे फेथ रखो डॉक्टर पे, और खाते टाइम उसको ब्लेस करके खाओ, सब ठीक होगा. Why you attracting more negativity into your life by doing all this research? एक तो ढिंडोरा पीटते रहते हो सारी दुनिया में, मुझे ये तकलीफ होगी, मुझे ये तकलीफ होगी, वैसे ही अट्रैक्ट कर रहे हो, नेगेटिविटी बढ़ा रहे हो, उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये कर लेते हो. Greatest and easiest way of restoring your health is being grateful. आपकी तकलीफ आई है, मानते हैं, शरीर है, तकलीफ आएगी आएगी, कहीं ना कहीं तकलीफ आती रहती है. द ओनली थिंग इज डोंट गेट वरीड. स्टार्ट पेइंग ग्रैटिट्यूड कि उसने अब तक कितना अच्छा काम किया है, कि आपको पता ही नहीं चला कि वो शरीर में वो अंग या वो ऑर्गन था. अब जब तकलीफ हुई है तो आपको पता चला कि मुझे ये यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकती थी, ये जगह में ये चीज काम कर रही है, ये ऑर्गन काम कर रहा था इतने टाइम से और बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम कर रहा था, अब कुछ मेल फंक्शनिंग हो गई है. राइट. सो बी ग्रेटफुल जब तक वो अच्छे से काम कर रहा था, और शरीर के बाकी अंग जो बहुत अच्छे काम करें उनके लिए ग्रैटिट्यूड देना शुरू करो, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कैसे अपने आप चीजें रिस्टोर हो जाती हैं. मुझे बीच में फीवर हुआ था, आई डिड नॉट टेक एनी मेडिकेशन, आई डिड नॉट गो टू द डॉक्टर. एक पैरासिटामोल खाई मैंने, एंड आई वाज जस्ट lying down taking rest, and I just kept saying thank you for giving me perfectly healthy body, and I just had lot of liquid and all, and शाम तक मेरा फीवर ठीक हो गया था. द ओनली थिंग इज यू हैव टू प्रैक्टिस इट. सुनने से कुछ नहीं होगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. हाँ जी, पढ़े. Many people also have critical thoughts and feelings of dissatisfaction about their physical appearance. Unfortunately, those thoughts and feelings also reduce the magical flow of health. When there is something you don't like about your body, you're not being grateful for your body. Think about it. By the law of attraction, complaints about your body bring more problems to complain about. And so, complaining about your body or appearance
puts your very health at risk. ओके पॉज। बहुत सारे लोगों को अपने बॉडी के शेप से, अपने चेहरे से, अपने बालों से बहुत कंप्लेन्स होती हैं, स्पेशली विमेन। इट्स नॉट दैट men don't have it, बट औरतों को ज्यादा होता है। मोटी हो गई, यहाँ से देखो कितनी मोटी हो गई हूँ, चेहरा कैसा हो गया, मेरे आंखों के नीचे ना थोड़े थोड़े डार्क सर्कल्स होने शुरू हो गए हैं, यहाँ पे ना हल्की सी पैची सी लग रही है स्किन आज ना, बाल कितने कम लग रहे हैं मेरे, मतलब देखो ना कितने अच्छे बाल होते थे, कितने कम हो गए। एंड देन व्हेन यू आर कंप्लेनिंग अबाउट ऑल दिस, व्हाट आर यू डूइंग? सोचो ना क्या कर रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? आप जिसके बारे में सोचते हैं, महसूस करते हैं और बोलते हैं, आप उसी को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं तो मोटी हूं, मैं तो ये हूं, अब आप कभी पतले हो ही नहीं सकते। ऑन दी अदर हैंड, अगर अपने आप को आप एक्सेप्ट करो सबसे पहले कि हाँ मैं हूं जैसी भी हूं, एंड देन यू स्टार्ट क्रिएटिंग व्हाट इज इट दैट यू आर लुकिंग फॉर एग्जांपल इफ आई से कि हाँ भाई, मतलब ठीक है मेरे बाल थोड़े से कम लग रहे हैं, ओके दैट्स फाइन, एंड देन यू स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड टू योर गॉड। जब आपने पहले एक्सेप्ट करना है, क्योंकि एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो आप वो एक्सेप्टेंस ही नहीं कर रहे हो, उसी से लड़ते रह जाते हो। यार ये ऐसा क्यों है, यार ये ऐसा क्यों है, मैं ऐसी क्यों लग रही हूँ, अरे मैं पतली क्यों नहीं होती हूँ। मतलब आप ना उसी के साथ फाइट करने में लगे हुए हैं। यू फाइटिंग विद द प्रॉब्लम, यू आर नॉट लुकिंग एट द सॉल्यूशन। या तो अगर आप सॉल्यूशन भी ढूंढ रहे हो पर बैकग्राउंड में तो फाइट ही चल रही है। तो अब अगर आप सबसे पहले एक्सेप्ट कर लेते हो, ओके दिस इज माय वेट, दिस इज हाउ आई लुक, नाउ आई कैन क्रिएट द काइंड ऑफ बॉडी आई वांट। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट, आपकी कोई पुरानी पिक्चर हो, आप उसको देखो जिसमें आप पतले थे या बहुत अच्छे बाल थे, या जो भी आप चाहते हो, एंड स्टार्ट गिविंग लॉट ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड टू दैट पार्ट, लाइक जो भी आपको चाहिए, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कैसे अपने आप चेंज होना शुरू हो जाएगा। अभी 2-3 दिन पहले जब मैं गुड़गांव में थी, तो आई वॉज लुकिंग एट माई फेस एंड आई सेड यार मेरी स्किन कितनी खराब लग रही है, एंड आई वॉज गेटिंग इनटू, वो ना इंस्टेंट तो रिएक्शन वही होता है, वरी हो जाती है। आई वाज फीलिंग वरीड यार, क्या इतना अजीब सी स्किन हो गई है ना। एंड देन आई जस्ट चेक माई सेल्फ, ओके हो गई है, दैट्स फाइन, इट्स अ स्किन विच इज चेंजिंग एनी डेज। अपने आप सारे सेल्स तो हमारे चेंज होते ही रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चेंज हो ही रहा होगा। व्हेन इट इज चेंजिंग, लेट मी हेल्प इट इन चेंजिंग इन अ बेटर कंडीशन, रादर देन वो चेंज होके फिर वैसी की वैसी रहे। सो आई स्टार्टेड पेइंग ग्रेटिट्यूड। एंड मैं कल शाम को वनीता को बोल रही थी, 2 ही दिन हुए, आई सेड वनीता मेरी स्किन मच बेटर लग रही है, कहती हाँ दीदी पहले से बहुत अच्छी लग रही है स्किन। एंड आई स्टार्टेड एक्चुअली फीलिंग इट बिकॉज आई वाज गिविंग सो मच ऑफ ग्रेटिट्यूड टू माय स्किन। सो अगर आपको अपनी बॉडी से, अपने बालों से, अपने चेहरे से कोई भी कंप्लेन है ना, तो वो कंप्लेन आपको कुछ नहीं देने वाली। सबसे पहले एक्सेप्ट कर लो, हाँ ये है। एक्सेप्ट करने के बाद आप उसके ऊपर ग्रेटिट्यूड देना शुरू करो, एंड देन स्टार्ट फीलिंग एज इफ यू ऑलरेडी रिसीव्ड इट, you already received it. इमेजिन करना शुरू, विजुअलाइज करना शुरू करो। कोई अपनी पुरानी पिक्चर को देख के उसको बहुत सारा प्यार देना शुरू करो, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड हाउ मैजिकली थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग। हाँ जी। Whoever has gratitude for their health and their body will नो, be फर्स्ट given more. फर्स्ट whoever does not have, Whoever does not have gratitude for their health and their body, even what he or she has will be taken from him or her. हाँ तो ये हम देख रहे हैं अपनी लाइफ में, जहां जहां हम कंप्लेन कर रहे हैं वहां पे हमारी चीजों का ह्रास हो रहा है, हमारी तकलीफें बढ़ रही हैं। अगर आपको कोई तकलीफ है और आप उसके बारे में बार बार बात कर रहे हो, तो वो तकलीफ बढ़ती है, घटती नहीं है। तो जो जिसके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं है, वो भी हमसे ले लिया जाएगा। और जहां भी तकलीफ आज है, इसका मतलब हमने उस एरिया की ग्रेटिट्यूड नहीं किए हुए हैं, इसीलिए वहां पर तकलीफ है। या हाँ जी, पढ़े। Whoever has gratitude for their health and their body will be given more, and he or she will have an abundance of health to their body. ओके, आपने एक चीज नोट करी, हर जगह पे ये वाला सेंटेंस पहले आता है और जिसके जो सेकंड सेंटेंस है वो बाद में आता है। एनीबॉडी नोटिस्ड इट?
Yes. I also noticed it this time only. इतनी बारी किताब पढ़ चुकी हूँ, प्रैक्टिस कर चुकी हूँ. I also read it and noticed it this time only. कि उसने पहले ये वाला लिखा है कि who does not have gratitude. क्योंकि हम हेल्थ की उस कंडीशन की बात कर रहे हैं जो हमारी हेल्थ कंडीशन हो चुकी है, जहां हमें तकलीफ है. वो क्यों है? बिकॉज वहां पे ग्रेटिट्यूड नहीं है. इसलिए उसने पहले ये वाला सेंटेंस लिखा है और फिर लिखा है कि अगर चली गई है, तकलीफ आ गई है, तो उसका निदान भी उसने साथ में नीचे दे दिया, उसका सोल्यूशन भी दे दिया नीचे. क्या करना है? स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड, क्योंकि जितना आप ग्रेटिट्यूड दोगे उतनी वो चीज बढ़ेगी. कैन यू सी दिस? इट्स सो मैजिकल. मतलब Yes. मैंने कभी नोटिस ही नहीं की इस बात कि उसने पहले ये लिखा है कि जिसके पास ग्रेटिट्यूड नहीं है उससे ले लिया जाएगा, है ना? क्योंकि हम खो चुके हैं वो, इसका मतलब वो ले लिया गया है ऑलरेडी हमसे, बिकॉज हमने ग्रेटिट्यूड नहीं दिया है. तो अच्छा, अब ले लिया गया तो अब क्या करना है? कुछ नहीं करना. सिंपल, ग्रेटिट्यूड दो, बिकॉज जितना ग्रेटिट्यूड दोगे उतना ही आपको भर भर के मिलेगा. तो उसका सोल्यूशन भी साथ में दे दिया. अमेजिंग, अमेजिंग. हाँ जी, पढ़े. You may be sick or unwell now, or even in a lot of pain. But if you are reading these words, you are continuing to receive the gift of health. It can be very difficult to access feelings of gratitude when sick or in pain. But even the smallest bit of gratitude helps increase the magical flow of health to the body. हाँ, जैसे मैंने बोला कि जब तकलीफ होती है उस टाइम पे ग्रेटिट्यूड नहीं आता दिमाग में. उस टाइम सिर्फ आता हाय बड़ी पेन है. और जितनी बार आप अपने आप से भी बोल रहे हो कि बड़ी पेन है, आप उसको इंक्रीज ही कर रहे हो. द मोर यू आर थिंकिंग एंड फीलिंग अबाउट एंड टॉकिंग अबाउट इट, द मोर यू आर अट्रैक्टिंग इट इनटू योर लाइफ. पर उस कंडीशन में नहीं नहीं होता ऐसा भी कि हमारे मुंह से हमेशा ग्रेटिट्यूड ही निकले. कई बार निकल जाता है हाय कितनी दर्द हो रही है, निकल जाता है मुंह से. या बट द ओनली थिंग इज, आप थोड़ा थोड़ा भी अगर ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दोगे, धीरे धीरे अपने आप वो सब ठीक होना शुरू हो जाएगा. लाइक आई वाज लाइक समबडी वाज शेयरिंग द अदर डे कि मुझे जब भी ऐसे कोई तकलीफ होती है ना, तो मैं बोलती नहीं हूँ, मैं अपने हस्बैंड को कुछ इशारा करती हूँ. लाइक आई विंक एट हिम और समथिंग, कि मतलब ही कम्स टू नो कि मुझे पेन हो रही है. मैं बोलती नहीं हूँ. एंड आई जस्ट एक बार कन्वे करने के बाद देन आई जस्ट गेट बैक टू माय ग्रेटिट्यूड्स. मतलब लोगों ने अपने अपने अलग से तरीके निकाले हुए हैं कि हमें बोलना नहीं है, उसके बारे में सोचना नहीं है और कहना नहीं है किसी को. क्योंकि जितना आप उसका बखान कर रहे हो, लोगों से शेयर कर रहे हो, उतना आप उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो. हाँ जी. Today's practice, Magic and Miracles in Health, is designed to dramatically increase your health and happiness. And we are going to take a triple pronged approach to accelerate the results. ओके, जो आज की प्रैक्टिस है उसके 3 भाग हैं. उनको हमें 3 हिस्सों में करना है. ठीक है. सो लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट वन. Step 1. Health you have received past. Think about the great health you have received throughout your childhood, adolescence, and adult life. Think about the times when you left full of energy and you were happy. Recollect 3 separate times in your mind when you felt on top of the world. Say the magic words thank you and feel sincere gratitude for those times. If you think back to the big moments in your life, you will be able to recollect 3 separate times very easily. ओके, तो उसका पहला स्टेप क्या है? हमको 3 तरीके से करना है. तो पहला तरीका क्या है, पहला स्टेप क्या है? वो ये है कि आपने पास्ट में, बचपन में कितनी एनर्जी होती है ना. मम्मी बुलाती रहती थी घर आ जाओ, घर आ जाओ. हम कहते नहीं, अपने ये थोड़ा सा और खेल ले, थोड़ा सा और खेल ले. कितनी एनर्जी होती थी. स्कूल के बाद आके भी लगे रहते थे, बैग साइड में फेंका, मम्मी कह रही कपड़े तो बदल लो, खाना तो खा लो, बट नहीं, हमें तो खेलने में लगा. वो कितनी एनर्जी होती थी उस टाइम. इवन इन कॉलेज टाइम्स कितनी देर तक हम लोग बैठे रहते थे, गप्पे मारते रहते थे, घूमते रहते थे, और कोई इवेंट है कॉलेज में तो कितनी प्रैक्टिस हो रही है. अगर कोई गेम है तो गेम की प्रैक्टिस चल रही है. ड्रामेटिक्स है तो उसकी प्रैक्टिस चल रही. जरा बिना थके लगे रहते थे. जब तक इवेंट नहीं हो जाता था लगता था कि मतलब
एनर्जी से भरे हुए हैं, है ना। ऐसे ही आपने 3 इंसिडेंट्स याद करने हैं। या हो सकता है घर में कोई फंक्शन हो और आप सुबह शाम लगे हो, जैसे घर में कोई शादी नहीं होती, बहन की शादी है, भाई की शादी है, वो कितने फंक्शन चल रहे होते हैं और आपके दुनिया भर के आपको काम सौंपे होते हैं। ओए ये कर दे, ये वाला काम कर लो, वो कर लो, इधर भाग ले, उधर भाग ले, डेकोरेशन नहीं हुई, हलवाई नहीं आया, आप सब जगह लगे हुए होते हो। एंड आप ऐसे कहते हैं ना, पंजाबी च भंबीरी बने होंगे हो, लाइक यू आर लाइक रनिंग अराउंड, लाइक पैरों के नीचे आपके वो कुछ स्केट्स लगे हो, इतनी एनर्जी के साथ भाग दौड़ कर रहे होते हो आप, बिकॉज अंदर से इतने खुश हो रहे होते हो आप, फुल ऑफ एनर्जी होते हो। ऐसे आपको 3 इंसिडेंट्स याद करने व्हेन यू वर फुल ऑफ एनर्जी, राइट। दिस इज नंबर 1। लेट्स टू लुक एट नंबर 2। Step 2. Health you are continuing to receive, present. Think about the health you are continuing to receive today and feel grateful for every organ, system, and physical sense that is currently working well in your body. Think about your arms, legs, hands, eyes, ears, liver, kidneys, brain, or heart. Choose 5 functions of your body that are well, and one by one mentally say the magic words thank you for each one. ओके, अब जो स्टेप नंबर 2 है वो आपको क्या करना है। हमने पास्ट का दे दिया, पास्ट का सोच लिया, उसके लिए थैंक यू दे दिया। नाउ थिंक अबाउट प्रेजेंटली, इस वक्त जब आप इस सेशन में हो, अभी सोचो ऐसे कौन से 5 आपके शरीर के अंग हैं, ऑर्गन्स हैं जो परफेक्टली काम कर रहे हैं। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? सो दैट मीन्स आपके कान अच्छे से काम कर रहे हैं, आप स्क्रीन देख पा रहे हो, आपकी आंखें ठीक से चल रही हैं, है ना, आप देख पा रहे हैं, आंखें ठीक हैं आपकी, आप समझ पा रहे हो, मतलब आपका ब्रेन काम कर रहा है, आप जिंदा हो, मतलब दिल धड़क रहा है, तभी तो बैठे हो सेशन में, तभी तो जिंदा हो। सो आपका हार्ट काम कर रहा है ना। आप कुर्सी पे बैठे हो, मतलब कि आपकी टांगे चल चल फिर रहे हैं, आप बैठे हो जहां पर भी बैठे हो, मतलब आप चल के आए हो, बाथरूम गए हो, बेड से उठे हो, दैट मीन्स आपकी टांगे चल रही हैं, आपके हाथ भी चल रहे हैं। तो जस्ट थिंक अबाउट 5 थिंग्स। अगर आपको स्मेल आ रही है तो मतलब आपका सेंसरी ऑर्गन ठीक से काम कर रहे हैं, है ना। तो आपने वो सब ऐसे करके 5 चीजें जो इस वक्त ठीक काम कर रही हैं, है तो बहुत सारी, पर आपको सिर्फ 5 चूज करनी है। 5 चीजें जो आपकी ठीक काम कर रही हैं। अगर आपका सुबह स्टमक क्लियर हुआ, दैट मीन्स आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम कर रहा है ना। अगर आप अपना ब्लैडर क्लियर कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपकी किडनी ठीक से काम कर रही है। लाइक यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट 5 थिंग्स, कोई भी 5 ऐसे चीजें आपकी लाइफ बॉडी की ऑर्गन्स जो ठीक से काम करें, आप उसके बारे में प्रेजेंट मोमेंट में सोचना है और उसके लिए थैंक यू देना है। नाउ पॉइंट नंबर 3। Step 3. Health you want to receive, future. You're going to choose one thing you want to improve about your body for today's magical practice. But you are going to use gratitude's magical power for it in a very particular way. Think about the ideal state of what you want to improve. When you give thanks for the ideal state of anything, you have put into motion to receive back that ideal state. ओके, पॉज। अभी देखो, अगर आपने शुरू में पढ़ा हो कि इस बुक को उसने किस तरह से डिजाइन किया है, तो इसमें पहले 12 चैप्टर्स थे पास्ट एंड प्रेजेंट को ग्रैटिट्यूड देने के लिए। रिमेम्बर, हमने मनी के लिए, हेल्थ के लिए, रिश्तों के लिए, हमने सब चीजों के लिए दिया ना, पास्ट में, प्रेजेंट में दिया। अब हम ये जो 10 चैप्टर्स हैं 12 के बाद, ये 10 चैप्टर्स हैं हमारा फ्यूचर क्रिएट करने के लिए, हमारे जो ड्रीम्स एंड डिजायर्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए। तो ड्रीम्स एंड डिजायर्स तो फ्यूचर में ही होते हैं ना। तो आज का चैप्टर क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड है, इसमें भी हमने 3 तरीके से ग्रेटिट्यूड दिया। नंबर 1, हमने पास्ट का देखा, पास्ट के 3 इंसिडेंट्स याद किए जिसमें हम फुल ऑफ एनर्जी थे, हमारी हेल्थ बिल्कुल फर्स्ट क्लास थी। देन हमने प्रेजेंट में ऐसे 5 हेल्थ के पैरामीटर्स को, हेल्थ के ऑर्गन्स को, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को हमने थैंक यू दिया जो इस वक्त काम कर रहे हैं। तो पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया। जब हमने पास्ट एंड प्रेजेंट कर लिया, नाउ कम्स द क्रिएशन ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर तो हमने क्रिएट ही करना है ना, वो तो अननोन है। तो उसको अगर हमने क्रिएट करना है, तो पहले पास्ट प्रेजेंट को कर लिया, तो अब हम फ्यूचर को क्रिएट कर रहे हैं कि अगर हमारे बॉडी में कहीं तकलीफ है तो उसकी आइडियल स्टेट हमें क्या चाहिए, हमें फ्यूचर कैसा चाहिए, उसमें तकलीफ तो ऑब्वियसली नहीं चाहिए ना। वो तो हमें अच्छा, बॉडी हमारी फिट चाहिए, हेल्दी चाहिए, ऑप्टिमम लेवल पे काम करती हुई चाहिए।
तो वो आइडियल बॉडी स्टेट क्या है, जहां भी आपको तकलीफ है उसका आइडियल स्टेट क्या है। अगर आपके घुटनों में दर्द है, लाइक यस्टरडे आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट मेरा आइडियल स्टेट ऑफ एनर्जी एंड गुड हेल्थ क्या है, दैट मैं जिस पार्क में चक्कर लगाने जाती थी, मैं उस चक्कर पार्क के 5 चक्कर लगा रही हूँ, और मैं अपने घर की सीढ़ियां ऐसे विदाउट रियलाइजिंग के मैं सीढ़ियां चढ़ रही हूँ, मैं अपने 3rd फ्लोर तक चढ़ के आ गई। तो दिस इज माई आइडियल स्टेट ऑफ हेल्थ। फॉर मी दैट इज व्हाट इट इज, राइट। तो अगर आपको कोई तकलीफ आपके बॉडी में है तो उसका आइडियल स्टेट क्या है, आपने वो विजुअलाइज करना है, उसके बारे में सोचना है। हाँ जी। Very often, when a person is diagnosed with an illness or disease of some kind, they will not only talk about it a lot, but they will research the disease, gathering information about its possible worsening symptoms and dreaded outcomes. In other words, they give their entire focus to the disease. However, the law of attraction says that we can't make a problem go away by focusing on it, because focusing on the problem can only make the problem worse. ओके, पॉज Instead, पॉज। तो मैं इसके बारे में पहले बोल ही चुकी हूँ, तो ये मैं भी बहुत करती थी। तो जैसे मेरा बीपी बढ़ गया ना, तो मेरे को बड़ा टेंशन हो जाता था, वरी हो जाती थी, भाई मेरा बीपी फिर से बढ़ गया, मेरे सर को कुछ हो रहा है, मेरे ना नेक के पीछे बहुत स्टिफनेस होगी। एंड देन आई विल कीप टॉकिंग टू पीपल अबाउट इट। किसी का भी फोन है, यार बीपी बहुत बढ़ गया मेरा, मेरे से उठा ही नहीं जा रहा, मेरा बीपी बहुत बढ़ा है। आई यूज्ड टू कीप टॉकिंग अबाउट इट, एंड देन आई यूज्ड टू लुक फॉर न्यू डॉक्टर्स टू चेक विद, कि ना मैं ये वाली दवाई खा रही हूँ, उसके बाद भी ना मेरा बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती, कुछ ये तो नहीं हो सकती। आई यूज्ड टू जस्ट कीप चेकिंग विद पीपल, मतलब नए नए डॉक्टर से पूछती रहती थी, फ्रेंड से पूछती रहती, यार कोई और डॉक्टर बता दे, मेरा ना ठीक ही नहीं हो रहा। आई वाज जस्ट, जैसे कहते हैं ना, गाना ही गाती रहती थी उसका हर टाइम पे। एंड व्हाट, एंड गेस व्हाट, क्या वो ठीक हो रहा? नहीं, वो कंट्रोल में ही नहीं आता था, समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। Since the time I've started practicing gratitude and I've stopped talking about it, I've stopped asking for advice from people. मतलब अभी मेरे को लगता है मैंने पिछले 3 महीने से तो अपना बीपी चेक भी नहीं किया। ये तो मैं 3 टाइम बीपी मशीन लगा के, और जब वो मशीन को चेक कर रहे होते थे तो वैसे ही स्ट्रेस बढ़ जाता था, हाय अब कितना आएगा, अब कितना आएगा, अब कितना आएगा। और जैसे जैसे वो पंप करता रहता था, मेरा मेरा बीपी ऑटोमेटिकली हाई हो रहा होता था, और दिन में 3 बार करती थी मैं। So what was I doing? I was attracting it. I'm not talking about others, I'm talking about my own self. Now, since I've stopped talking about it, I'm just paying gratitude. I'm taking my medication, and while having my medication, I just bless it and say, thank you for curing me, for healing me. My body is becoming normal, my body is becoming healthy. I just do that. And 3 महीने से मैंने अपना बीपी चेक नहीं किया. I have not even visited the doctor. नहीं तो हर 15 दिन महीने में मैं डॉक्टर के पास। इनफैक्ट इस चक्कर में पूरन ने मुझे एक इंश्योरेंस दिलवाई है ओपीडी की, जिसपे ऑनलाइन मैं जितने मर्जी डॉक्टर से चाहूं मैं फ्री में कंसल्टेशन ले सकती हूँ, बिकॉज ही इज सीन मी कंसल्टिंग सो मेनी पीपल, बट आई हैव नॉट यूज्ड इट। आई हैव नॉट यूज्ड इट। आई डोंट फील द नीड। I just do my gratitude and I just keep taking my medication. That's all. And I am 100% sure, like in coming future I will also be without medication. I'm 100% sure. Hanji. instead, we should do the exact opposite and focus on the ideal state for the area of our body that is unwell and give our thoughts and feelings to that. Gratitude for the ideal state of any part of our body powerfully uses our thoughts and feelings together, so we magnetize it to us in one fell swoop. Yeah, that's it. आपके thoughts and feelings वही तो है। जब आप सोच रहे हो और feeling का fuel डाल रहे हो, that is what it is doing it. Hanji. Spend 1 minute in visualizing a scene of yourself with the ideal state of your body that you want. And as you see your body in your mind, the way you want it to be grateful for it as though you have received it. Yeah. तो आपको विजुअलाइज करना है कि आपका आइडियल स्टेट ऑफ बॉडी क्या है। आपकी, अगर आपको अपनी लाइक वेट रिड्यूस करना है, तो आपका आइडियल बॉडी वेट कम हो जाएगा, तो आप कैसे लगोगे, आपने क्या पहना होगा, आप कैसा महसूस कर रहे होगे, आर यू गेटिंग एनी कॉम्प्लीमेंट्स,
है ना. You just have to visualize. इस तरीके से जब आप विजुअलाइज करोगे तो यू आर अट्रैक्टिंग दैट इनटू योर लाइफ. तो आपने उसको सोचना है. 1 मिनट के लिए सोचो. 1 मिनट तो कुछ भी नहीं होता. हम तो अगर सोचना चाहे तो हम बैठे बैठे तो नेगेटिव तो हम कितना सोच लेते हैं, कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं. तो पॉजिटिव तो 1 मिनट बोल रहा है कम से कम. 1 मिनट से शुरू करो और उसको बढ़ाते चले जाओ. जितना विजुअलाइज करोगे, जितना अंदर से खुश होगे, उतना ही वो जल्दी आपके पास आपकी हेल्थ रिस्टोर करने हो जाएगी. हाँ जी. So, if you want to magically restore health to your kidneys, be grateful for strong and healthy kidneys that filter and sift out all the waste products from your body. If you want to magically restore health to your blood, be grateful for pure and healthy blood that flows oxygen and nutrients to all parts of your body. If you want to magically restore health to your heart, give thanks for a strong and healthy heart that maintains the well being of every organ in your body. If you want to magically improve your eyesight, then give thanks for excellent vision. If you want to improve your hearing, then give thanks for perfect hearing. If you want more flexibility, then give thanks for a perfectly supple and agile body. If you want to change your weight, first think about the ideal weight that you want to be. Then imagine yourself at that ideal weight and give thanks for it as though you have received it now. Whatever it is that you want to improve, first imagine yourself with the ideal state and then be grateful for the ideal state as though you have received it right now. यस. तो आपको करना क्या है, आपको अपने हेल्थ को लेकर, अपने बॉडी को लेकर जो भी आइडियल स्टेट चाहिए, आपको उसको विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है, और एज इफ यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट राइट नाउ, प्रेजेंट मोमेंट पे उसको महसूस करते हुए आपने क्या करना है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड देना है. सिंपल, वेरी सिंपल. बहुत आसान भी है, बट टाइम निकालना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा इसके बारे में. हाँ जी. Natural forces within us are the true healers of disease. Hippocrates, circa 460 to circa 370 BC, father of Western medicine. हाँ, तो हमारी बॉडी अपने आप को हील करना जानती है. इसीलिए अगर आप देखो तो नेचुरोपैथी में वो क्या कहते हैं, आपको दवाई लेने की जरूरत ही नहीं है, आपकी बॉडी अपने आप को हील कर सकती है. बस उसको वही फ्यूल दो, वही खाने को दो जो उसकी नेचर है, जो उसको चाहिए. दैट इज ऑल. उसको प्रॉपर रेस्ट दो, प्रॉपर हाइड्रेट रखो, बॉडी अपने आप को खुद अपने आप को रिस्टोर कर लेती है ना. तो दैट इज व्हाट बॉडी में ये क्वालिटी ऑलरेडी होती है. आपकी उंगली कटती है, अपने आप जुड़ जाती है ना, जुड़ जाता है ना, जहां से भी कटता है. आपने उसके ऊपर कुछ पट्टी भी नहीं बांधी, काम करते रहे, वो अपने आप 1-2 दिन में अपने आप जुड़ जाता है. कल मेरी फ्रेंड बता रही थी, उसके ब्रदर का ऑपरेशन हुआ एंड उन्होंने कुछ पाइप डाला हुआ था. उन्होंने कहा घर जाके पाइप निकाल देना, गले गले के पास कहीं था. शी सेज पाइप निकाला, वो स्किन उसी टाइम वापस जुड़ गई, कुछ नहीं हुआ वहां पे. सो बिकॉज आवर बॉडी इज मेड लाइक दैट. हाँ जी. You can follow the magic and miracles health practice every day if you need to, and you can do it multiple times in a day. If you really want to accelerate the magical restoration of full health or the improvement of an aspect of your body. But it is vital that whenever you have a negative thought or feeling about the current state of your body or health, that you replace it immediately by visualizing yourself with the ideal state you want and by being truly grateful as though you have already received it. हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है. ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि जब तकलीफ होती है तो मुंह से नेगेटिव वर्ड्स निकलते ही हैं. बट आपके पास तो लाइफ लाइन भी है, आप अपनी लाइफ लाइन भी यूज कर सकते हो. या तो आप उस टाइम लाइफ लाइन यूज कर लें, या फिर उसी टाइम इमेजिन करना शुरू कर दें कि आपके आइडियल बॉडी की जो स्टेट जो आप चाहते हो वो रिस्टोर हो गई, एंड स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड फॉर इट. अदरवाइज लाइफ लाइन भी यूज कर सकते हो. याद है ना सबको लाइफ लाइन, ये भूल गए हो? किसको याद है लाइफ लाइन? Yes, the gift of health. Thank you for the gift of health that is keeping me alive. No, that is not the lifeline. Lifeline is when you're about to say something negative and you convert it into positive.
You remember we did that exercise What I Yes. Yeah. See, yes. But today what my I health want to is very say is that I'm exciting. so I keep grateful. saying that. Yes, yes. That is why. Anji, pade. The most effective way to guarantee health, other than taking good care of yourself physically, is to continue to be grateful for your health. Yes. तो आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं वो लो, उसके साथ साथ ग्रेटिट्यूड भी देना शुरू कर दो, तो आपकी जो भी तकलीफ है वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी. हाँ जी, पढ़े. Magic practice number 16. Magic and miracles in health. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Recollect 3 separate times throughout your life when you felt on top of the world and give sincere thanks for those times. Okay, Think about so first, the first one, of course, you know, आपको अपना count your blessings लिखने हैं. Number 2, जो आज का असाइनमेंट है उसमें आपने हमको उसको 3 तरीके से करना है, पास्ट में, प्रेजेंट में एंड फ्यूचर में. तो पास्ट में आपने 3 ऐसे इंसिडेंट्स याद करने हैं when you were feeling on top of the world, full of energy, full of health. या और उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड देना है. हाँ जी. Think about 5 functions of your body that are well, and one by one give thanks for each one. हाँ, और उसके बाद प्रेजेंट में 5 ऐसे ऑर्गन्स, 5 ऐसी चीजें बॉडी की जो अच्छे से काम करे, उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना है. Choose one thing about your body or health you want to improve and spend 1 minute visualizing yourself with the ideal state of your body or health. Then give thanks for this ideal state. हाँ, Just और before लास्ट थर्ड है फ्यूचर, कि आपको अपनी बॉडी का या अपनी हेल्थ का आइडियल स्टेट क्या चाहिए. आपने 1 मिनट के लिए इसको इमेजिन करना है और उस आइडियल स्टेट को इमेजिन करते हुए, फील करते हुए कि आपको उस टाइम कैसा लग रहा है, आपने ग्रेटिट्यूड देना है. हाँ जी. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened in the day. ओके, एंड रात को सोने से पहले आपको क्या करना है, अपना मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है. पूरा दिन को स्कैन करना है, जो जो अच्छा हुआ उसके बारे में सोचना है, तो सबसे अच्छा लगा आपको कि पूरे दिन में ये चीज बहुत अच्छी हुई मेरे साथ, उसके लिए थैंक यू देना है और उसको मैजिक रॉक को साइड पे रखना है और सो जाना. सो दिस इज योर प्रैक्टिस फॉर टुडे. और इसमें सिवाय काउंट योर ब्लेसिंग्स के लिखने का कोई काम नहीं है, सिर्फ बैठ के सोचने का काम है. वो आप कहीं पर भी बैठ के कर सकते हो. तो डोंट गिव मी दिस एक्सक्यूज कि आज दिवाली है, मुझे टाइम नहीं मिला. अगर आपको हेल्थ रिस्टोर करनी है, आपकी कमिटमेंट है कि मुझे अपनी जिंदगी को सुधारना है, अच्छा बनाना है, अपने हेल्थ को 100% ठीक करना है, देन यू ought टू टेक आउट दैट टाइम एंड डू दिस एक्सरसाइज. बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेने वाली है, बीच में 5 मिनट निकाल के इसको कर लीजिएगा. Right? So thank you very much for reading the chapter. Anybody wants to say anything? Or we just do the prayer? Thank you. Okay, so let's do the prayer. So So much fold your hands, close your eyes and very say, important chapter. sorry. Yeah, and say thank you to whosoever you want to say thank you. Okay, thank you everybody and wish you once again a very happy Diwali. भगवान आपके घर को धन धान्य से भरपूर रखे, संपन्नता से भरपूर रखे और अच्छी हेल्थ दे आपको. आप सबको, आपके सबके सब परिवार में सबको बहुत सारी खुशियां और बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली. Thank you. Happy Diwali. Thank you, ma'am. Thank you. The same. सबका मंगल हो, हैप्पी दिवाली सबका आप मंगल हो. सबको. हैप्पी